بلیٹن کے آغاز میں سب سے پہلے بات کرتے ہیں کورٹ الیکشنز کی تو ڈسٹرکٹ بار کے سالانہ انتخابات پولنگ کا عمل جاری ہے۔ وقفے کے بعد ووٹرز وکلا کا رش بڑھ گیا ہے۔ وکلا سپورٹرز امیدواروں آپ کو بتا رہے ہیں ڈسٹرکٹ بار کے سالانہ انتخابات پولنگ کا عمل جاری ہے۔ وقفے کے بعد ووٹرز وکلا کا رش بڑھ گیا ہے۔ وکلا سپورٹران کے امیدواروں کے حق میں نعرے بازی بھی جاری ہے۔ بار کی 4 نشستوں پر 11 امیدواروں کے درمیان کانٹے دار مقابلہ جاری ہے۔ ملتان میں ڈسٹرکٹ بار کے سالانہ انتخابات پولنگ کا عمل جاری ہے۔ وقفے کے بعد ووٹرز وکلا کا رش بھی بڑھ گیا ہے۔ وکلا سپورٹران کے امیدواروں کے حق میں نعرے بازی بھی جاری ہے۔ بار کی 4 نشستوں پر 11 امیدواروں کے درمیان کانٹے دار مقابلہ جاری ہے۔ ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں ماہر عمران۔ جی ماہر عمران، بتائیے گا اب کیا ٹرن آؤٹ چل رہا ہے؟ جی بالکل، ٹرن آؤٹ کی سب سے پہلے تو آپ نے بات کی تو وقفے سے جو پہلے وہ ٹرن آؤٹ تھا 7 سے 8% تھا، اور اس وقت تقریباً 800 جو ووٹرز ہیں انہوں نے حق رائے دہی استعمال کیا تھا۔ ملتان بار پاکستان کی تیسری بڑی بار ہے اور اس میں 4873 جو ووٹرز ہیں انہوں نے آج حق رائے دہی استعمال کرنا تھا، لیکن جو اب جیسے ہی وقفہ بریک ختم ہوئی اس کے بعد اب ہم دیکھ سکتے ہیں کہ وکلا کا بہت زیادہ جو رش ہے وہ بڑھ چکا ہے۔ میرا کیمرہ مین سب سے پہلے تو ہم یہ پولنگ بوتھ کے ایریا میں موجود ہیں جہاں پہ بڑی تعداد ایک وکلا کی سپورٹران کی یہاں پہ آئی ہوئی ہے، اور جیسے وقت قریب آتا جا رہا ہے 5 بجے پولنگ کا وقت ختم ہونا ہے، اس کے قریب جو ووٹرز ہیں وہ بھی ان کی تعداد 3 گنا جو ہے صبح کے مقابلے میں زیادہ ہو گئی ہے، اور اس وقت جاری ہے جو کینڈیڈیٹس ہیں وہ اپنے وہ ان کے درمیان کانٹے دار مقابلہ ہے۔ صدارت کی بات کریں تو وسیم خان بابر، وحید رضا اور چودھری جہاں زیب کے درمیان جو ہے یہ مد مقابل ہیں، اور تینوں ہی پر امید ہے کہ جیت انہی کی ہوگی، کیونکہ آج کا جو الیکشن ایک حوالے سے بڑا جو ٹویسٹ بھی اس میں ہو گیا ہے، کانٹے دار مقابلہ بھی ہو گیا، کیونکہ جو وکلا کی اس طرح سے جو پہلے تعداد تھی اس کے نتیجے میں آج تعداد جو ہے وہ کم نظر آ رہی ہے۔ سپورٹرز موجود ہیں، ان سے جانیں گے کس سے آپ سپورٹ کر رہے ہیں اور یہاں پہ آئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، آج الیکشن بالکل پرسکون ہو رہا ہے الحمدللہ۔ ہم چودھری جہاں زیب صاحب ہیں، صدارت کا الیکشن لڑ رہے ہیں، انہیں سپورٹ کرنے آئے ہیں۔ ماشاءاللہ ابھی تک ان کی بہت زبردست پوزیشن جاری ہے، انشاءاللہ وہی یہاں سے جیتیں گے صدارت۔ یہاں پہ دیگر جو فیمیل لائرز بھی موجود ہیں، ان سے کسے سپورٹ کر رہی ہیں؟ ہم وسیم خان بابر صاحب کو پریزیڈنٹ کے لیے ہمارے کینڈیڈیٹ ہیں، باقی جو اللہ کی طرف سے جس کو بھی کی جیت ہوگی۔ پینل کے ساتھ میم آئے ہوئے ہیں، کیا کہیں گے؟ ہم جو ہے نا اپنا پورا پینل ہے ہمارا، اور ہم فرنٹ میں وسیم خان بابر ہے، پوری بات جانتی ہے کہ ان کے ساتھ کون کون اٹیچمنٹ ہے، اور ہم انہیں انشاءاللہ تعالی ہم لوگ آج آپ بھی آگے ہیں، یہاں پہ ہم نظر آ رہے ہیں، کیا کہیں گے آج کے الیکشن؟ آج کے الیکشن زبردست جا رہا، مطلب پرسکون اور اچھا، اور انشاءاللہ وسیم خان جیتیں گے۔ لیڈیز بھی ساری آئے ہوئے ہیں، ہاں جی بالکل، تمام لیڈیز بھی یہاں پہ موجود ہیں۔ ہم یہاں جعفر تیار بخاری صاحب ہمیں نظر آ رہے ہیں، پنجاب پارک الیکشن میں پہلی پوزیشن آپ نے لی تھی، آپ کو بخوبی اندازہ ہے کہ کس طرح سے ووٹ جو ہے ووٹرز آتے ہیں۔ اب ہم نے دیکھا کہ بڑی تعداد جو امڈ آئی ہے، وقفے سے پہلے بہت کم تھے، کیا دیکھ رہے ہیں جیت کے حوالے سے اور وکلا الیکشن کے حوالے سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے تو عمران آپ کی مہربانی، دوسرا آج میری نظر میں تو جمہوریت کی ہی جیت ہوگی۔ جس دوست نے زیادہ محنت کی ہے میرا رب اسے ہی فتح دے گا۔ اللہ نے شکر کیا، موسم بہت اچھا ہے، اس لیے کاسٹنگ امید سے زیادہ ہے، تو مغرب کے بعد پتہ لگ جائے گا کون جیت رہا ہے۔ اس کے بعد پتہ چلے گا۔ دیگر سپورٹران بھی موجود ہیں، آپ اسی بار میں جنرل سیکرٹری رہے ہیں، جنرل سیکرٹری میں 1 to 1 مقابلہ ہے، بڑا کانٹے دار مقابلہ ہے، کیا دیکھ رہے ہیں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عمران بھائی، الیکشن یہ ہمارے ہر سال ہوتے ہیں اور دوست اسی طرح سے محنت کرتے ہیں۔ آج جو الیکشن ہے سارے کے سارے الیکشن کانٹے دار الیکشن ہے، اور بہت کم مارجن سے الیکشن کا رزلٹ آئے گا، تو جس دوست نے زیادہ محنت کی ہوگی اس کا جیت کا حقدار ہوگا۔ بہرحال الیکشن بہت کانٹے دار ہیں، بہت کانٹے دار ہے، اور اس وقت جو ہے بڑی جو امیدیں جو ہیں وہ تمام امیدواروں کی ہیں۔ یہاں پہ میں عامر شاہ میرا کیمرہ مین دکھائے گا تو پولنگ بوتھ پہ بھی جو رش ہے، اور یہاں پہ یہ جتنے بھی پولنگ بوتھ کے ان کے کینڈیڈیٹس ہیں، الیکشن کمیشن کے بورڈ کے وہ کینڈیڈیٹس یہاں پہ موجود ہیں اور یہاں پہ وہ کر رہے ہیں۔
तो इस हवाले से बताते चले कि वकला का रश है वकला का अभी रश गवर्नर है। माहिर इमरान, आपका शुक्रिया। डेरा गाजी खान में डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के इंतखाबात पोलिंग का अमल जारी है। वोटर्स अपना हक राय दही इस्तेमाल कर रहे हैं। मजीद तफसीलात जान लेते हैं आशिर इशफाक से। जी आशिर, बताइएगा। डीजी खान में पोलिंग का अमल जारी है और बाकायदा तौर के ऊपर डिस्ट्रिक्ट बार के जो इलेक्शन है गहमा गहमी उरूज पर है। थोड़े ही लम्हे बाकी हैं, पोलिंग का अमल ख़त्म होगा तो वोटों की जो गिनती है वो शुरू की जाएगी, लेकिन वकला की बड़ी तादाद है जो वोट कास्ट कर रही है और बाकायदा तौर के ऊपर डिस्ट्रिक्ट बार में जो गहमा गहमी है वो उरूज पर है। बात करते हैं मलिक साहब, क्या कहेंगे सर, एक जमहूरी जो प्रोसीजर है वो यहाँ पर जारी है डिस्ट्रिक्ट बार का, कैसा देखते हैं इस प्रोसीजर को? सर, ये जो प्रोसीजर अगर देखना चाहें आप जमहूरियत का, तो वकला से ज़्यादा मेरे ख्याल में जमहूरियत कहीं आपको नज़र नहीं आएगी। उसकी वजह ये है कि जो वकला हैं इनके इलेक्शन हर साल होते हैं और बड़े पुरअमन तरीके से होते हैं। ये दोस्तों का इलेक्शन होता है, तो मेरे ख्याल में दूसरे भी जो जमहूरी ताकतें हैं पाकिस्तान में उनको भी सबक सीखना चाहिए वकला से कि जिस तरीके से पुरअमन तरीके से यहाँ पे आपको पता है कि पोलिंग का अमल जारी है, तमाम दोस्त अपनी राय का इजहार भी कर रहे हैं और इंशाअल्लाह जो हमारा ये जो प्रोसीजर चल रहा है, हमारी जो पोलिंग हो रही है वो पुरअमन तरीके से अपने अंजाम को पहुंचेगी और दोस्त अपने हक का जो है वो सही इस्तेमाल करेंगे इंशाअल्लाह। सर, सीनियर मेंबर्स भी देख रहे हैं यहाँ पर वोट कास्ट करने के लिए आ रहे हैं, तो कैसा देख रहे हैं गहमा गहमी? बस हम देख रहे हैं कि यहाँ पे आपको पता है कि वकला का हर साल इलेक्शन होता है और बड़े पुरअमन तरीके से और सही जमहूरी रिवायात के साथ होता है और हर साल होता है। तो यहाँ पे सारे दोस्त हैं, हमारा कोई आपस में वो नहीं होता। बस जिसको वकला की मेजॉरिटी जिसको चाहती है कि बार के मफाद के लिए वो काम करेंगे उनको वो वोट देते हैं और ये बड़े अच्छे तरीके से आज हो रहा है। और इस दफ़ा का जो इलेक्शन है वो बड़ा मतलब हल्ले गुल्ले वाला है, क्योंकि 4 सदर हैं और 2 जनरल सेक्रेटरी हैं और वो सारे जो है ना इस वक्त मतलब कांटेदार मुकाबला है। कांटेदार मुकाबला है यहाँ पर, बाकायदा तौर के ऊपर थोड़ा वक्त बाकी रहता है पोलिंग से। वोटर्स की भी तादाद है जो वोट कास्ट कर रही है, बाकायदा तौर के ऊपर पुरअमन तरीके से जो इलेक्शन का अमल है वो जारी है। जी सही आशिर इशफाक, आपका शुक्रिया। मियांवाली डिस्ट्रिक्ट बार की सदारत और जनरल सेक्रेटरी के ओहदे पर कांटेदार मुकाबला जारी है। पोलिंग का अमल जारी है। दोनों ग्रुपों के उम्मीदवार कामयाबी के लिए खासे पुरुमीद दिखाई दे रहे हैं। जस्टिस ग्रुप की सदारत के उम्मीदवार कामरान खान का कहना है कि जीत कर बावकार बुलंद करूंगा। मियांवाली डिस्ट्रिक्ट बार की सदारत और जनरल सेक्रेटरी के ओहदे पर कांटेदार मुकाबला जारी है। पोलिंग का अमल भी जारी है। दोनों ग्रुपों के उम्मीदवार कामयाबी के लिए पुरअज़्म हैं। बात कर लेते हैं अपने नुमाइंदे अख्तर मजाज से। जी अख्तर, बताइएगा। मियांवाली में डीपीए का इलेक्शन जो है उसकी गहमा गहमी जारी है। पोलिंग का अमल जारी हो चुका है और दोनों ग्रुप्स के जो उम्मीदवार हैं अपनी अपनी जगह पर पुरुमीद हैं कि शाम को नताइज उनके हक में आएंगे और वो ही इफ़्फ़त याब होंगे। हमारे साथ मौजूद हैं जस्टिस ग्रुप के सदारत के उम्मीदवार कामरान खान। आपसे इस सवाल से पहले बात करते हैं। सर, क्या तवक्कुआत हैं आपको, शाम को क्या नताइज आने वाले हैं? इंशाल्लाह जी हमारी बहुत ज़्यादा मेहनत है, अल्लाह करीम अपनी मदद से हमें कामयाब फरमाएंगे। वकला बहुत ज़्यादा पुरजोश हैं हमारे ग्रुप के। इंशाल्लाह ताला हम बहुत पुरुमीद हैं कि फतह हमारी होगी। बाकी इंशाल्लाह कामयाब होके वकला की खिदमत करेंगे, जंग वकला की करेंगे, वकला की डिग्निटी, बार की डिग्निटी के लिए काम करेंगे। थैंक यू जी। बिल्कुल, शेख हनीफ ग्रुप के भी सदारत के उम्मीदवार सतार खान राशिद साहब, क्या तवक्कुआत है? अगर आप कामयाब होते हैं तो क्या तरजीहात होंगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा आप देख रहे हैं कि बड़े ही जमहूरियत तरीके से हमारा इलेक्शन पोल हो रहे हैं। कोई बड़े दोनों कैंपों में बड़ा गेमा गेमी है और बड़ी आज़ादाना तौर पर वोट पोल हो रहे हैं और इंशाअल्लाह अगर अल्लाह ताला ने कामयाबी दी तो मेरी बड़ी तरजीहात हैं बार और बेंच के जो आपस में जो है ताल्लुकात वो उसमें बेहतरी होगी। जूनियर वकला के लिए चैम्बर का मसला है वो भी हल करेंगे और दीगर जो मसाइल है इंशाअल्लाह उसको बड़े अच्छे तरीके से हल करेंगे और इंशाअल्लाह मुतवक्किल है, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला कामयाबी देगा। जी
जी बिल्कुल, जैसा कि आपने इफ्तार खान राशिद साहब की बात सुनी कि अगर कामयाब होते हैं तो जूनियर वकीला के जो मसाइल हैं उनका खात्मा होगा। उसके अलावा बार और बेंचेस के दरमियान जो खलिश या तलखियां या कोई फासला रह जाता है तो उसको ख़त्म किया जाएगा। दोनों उम्मीदवार जो हैं पुरुमीद हैं फतह के लिए, कामयाबी के लिए। अब देखना ये है कि शाम 5 बजे क्या नताइज आते हैं। 449 टोटल वोट हैं, पोलिंग का अमल जारी है, वोकला आ रहे हैं, वोट पोल हो रहे हैं, शाम 5 बजे नताइज सामने आए। अख्तर मजाज आपका शुक्रिया। उधर खानेवाल डिस्ट्रिक्ट बार के सालाना इंतखाबात की पोलिंग का अमल भी जारी है। वुकला वोटर्स की गहमा गहमी अरूज पर पहुंच गई है। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं नदीम मुगल से। जी नदीम, बताइएगा। डिस्ट्रिक्ट बार खानेवाल के सालाना इंतखाबात की पोलिंग का अमल सुबह 9 बजे शुरू हुआ है, जो कि तसलसल के साथ जारी था। दरमियान में को आधे घंटे का खाने का वक्फा किया गया, लेकिन आपको बताते चलें कि इस वक्त तक अगर वोटों की बात की जाए तो 700 में से तकरीबन 400 से ज़ायद वोट जो हैं वो कास्ट हो चुके हैं। वुकला जो है यहाँ पर खासे पुरजोश दिखाई दे रहे हैं, अपने अपने उम्मीदवारों को, ग्रुपों को वोट सपोर्ट करते दिखाई दे रहे हैं। तो मजीद हम बात करेंगे, हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है कमर रज़ा शहजाद एडवोकेट साहब, उनसे जानते हैं। जी बताइएगा कि इलेक्शन सुबह 9 बजे पोलिंग का अमल जारी है, बड़ी गहमा गहमी है, क्या कहेंगे? बहुत शुक्रिया जी। मैं ये समझता हूँ कि इलेक्शन जो है ये एक जमहूरियत की एक बुनियाद है, और आप अच्छी तरह जानते हैं कि पाकिस्तान का क़याम भी एक एडवोकेट कायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह ने बनाया, और ये इसी बार की वजह से ही मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान में एक जमहूरियत कायम है। यानी आप पाकिस्तान में देख लें, जितनी भी हमारी बार्स हैं वो बाकायदा हर साल इलेक्शन होते हैं और लोग मुंतखब होते हैं, और मुंतखब नुमाइंदे जो है फिर वकला के मसाइल, और ना सिर्फ ये वकला के मसाइल का हल है, वकला जो है ये हर तहरीक का, पाकिस्तान में भी जो जमहूरियत है उसका रावल दस्ता रखते हैं। तो यहाँ से वो नर्सरी तैयार होती है जो आगे पॉलिटिशियन भी जाते हैं, सियासत में भी जाते हैं, और ये वो पढ़ा लिखा तबका है। अगर इसे अपॉर्चुनिटी दी जाए, मौका दिया जाए, कोई कानून से भी आगाह होते हैं, रोल ऑफ लॉ हो सकता है, वकला ही जो है इस मुल्क में कानून की हुक्मरानी कायम कर सकते हैं। जी, एक दूसरे के दोस्त भी रहते हैं, और जमहूरियत का अगर हुस्न है तो वो हमें सही। नदीम मुगल, आपका शुक्रिया। रहीम यार खान में डिस्ट्रिक्ट बार के सालाना इंतखाबात इलेक्शन की पोलिंग का अमल जारी है। उम्मीदवार आज अपनी कामयाबी का दिन करार दे रहे हैं। मजीद तफसीलात जान लेते हैं आसिम सिद्दीक से। रहीम यार खान में डिस्ट्रिक्ट बार के सालाना इंतखाबात जारी हैं, इलेक्शन की पोलिंग का अमल जारी है। उम्मीदवार आज अपनी कामयाबी का दिन करार दे रहे हैं। मजीद तफसीलात जान लेते हैं आसिम सिद्दीक से। जी आसिम, बताइएगा। रहीम यार खान में डिस्ट्रिक्ट बार इलेक्शन में वोटिंग का अमल जारी है। मजीद तफसीलात जान लेते हैं आसिम सिद्दीक से। जी आसिम सिद्दीक, बताइएगा, रहीम यार खान में कैसी गहमा गहमी दिखाई दे रही है? देखिए, इलेक्शन रहीम यार खान में डिस्ट्रिक्ट बार का इलेक्शन जारी है, जो सुबह 9 बजे से लेकर 5 बजे तक ये पोलिंग का अमल जारी रखना है। और अब पोलिंग का वक्त खत्म होने हुए थोड़ा सा वक्त रह गया है। वोटर्स यहाँ पर बड़े पुरजोश नजर आ रहे हैं, जो उम्मीदवार हैं वो भी बड़े पुरजोश हैं, क्योंकि अब रिजल्ट का वक्त आ चुका है। जो सपोर्टर्स हैं वो भी पुरजोश हैं, क्योंकि इलेक्शन कैंपेन के बाद आज है नताइज की जिम्मेदारी। सदर डिस्ट्रिक्ट बार जो आज साबिक सदर होने जा रहे हैं, नई सदर जो भी इलेक्ट होंगे उनको ये जिम्मेदारी सौंपेंगे। सरदार साहब, आप जिस दौर से गुजरे हैं, पिछला इलेक्शन आपने देखा, तो ये बड़ा इस वक्त जो टाइम होता है गिनती वाला बड़ा क्रूशियल होता है, बड़ा उम्मीदवार पर भारी होता है। तो किस तरह समझते हैं कि जो नई आने वाली कैबिनेट है, जो भी इलेक्ट होगा सदर, तो वो किस तरह से परफॉर्म करेगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं और मेरे जो काबीना और मिर्जा अमीन खान जनरल सेक्रेटरी थे, हमने इतने अच्छे काम किए, आपने औरों से भी पूछा होगा। एक तो उनको ये पूरा साल टफ टाइम हम दे के जा रहे हैं, वकला बहबूद के लिए हमने काम की है, और बिल्कुल हमने बार और बेंच के दरमियान में बेहतरीन रवाबित कायम किए हैं। हमने मस्जिद को तामीर, अल्लाह ताला ने हमसे अल्लाह का घर तामीर किया। जस्टिस साहब अनवर पन्नू साहब यहाँ आए, और इतनी अच्छी रवायत हम कायम करके जा रहे हैं। रात हमारा एनुअल डिनर था, गुल मोहम्मद शाहिद साहब हमारे जो प्यारे भाई अल्लाह को प्यारे हो गए हैं, उनकी सीट, बस वो नायब सदर के उम्मीदवार थे। आज हम उनके सिलसिले में यौम सोग भी मना रहे हैं। पर ये जमहूरियत का हुस्न है, जो पूरे पंजाब में एक ही दिन वोट होने हैं, ना हम वो सस्पेंड कर सकते थे। हम सोग में आज इलेक्शन हो रहा है,
ये हमसे लोग सीखें भी सही। बिल्कुल एक बेंच मार्क कहते हैं मुकर्रर कर दिया गया है, कारकर्दगी के हवाले से जो भी आएगा उस बेंच मार्क को करेगा। खवातीन भी सरगर्म है, आप खवातीन का सिलेक्शन में कैसा पार्टिसिपेट देख रही हैं? किस तरह से आप लोगों ने पार्टिसिपेट किया? अब रिजल्ट आने वाला है, जिनको सपोर्ट किया तो उसका किस तरह से किया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नौशीन हाशमी एडवोकेट, मेरा ताल्लुक ग्रेटर अलायंस से है और हमारे जो कैंडिडेट हैं फॉर द प्रेसिडेंट जाम अब्दुल मजीद लाड साहब एंड द कैंडिडेट फॉर द जनरल सेक्रेटरी मियां फहद मुनीर साहब एंड द ऑल पैनल इंशाल्लाह भारी अक्सरियत से शाम को अल्लाह ताला हमें ये खुशी नसीब फरमाएगा, कामयाब होगा। इसमें हमारी ऑडिटर की सीट पे आयशा रहीम साहिबा हैं, अल्लाह ताला उनको भी कामयाब करेगा। इस इलेक्शन में ये दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ द डेमोक्रेसी। यहाँ पे वोट आपका एक बहुत ही कीमती फरीज़ा है और ये ज़मीर है आपका। आपने जो कैबिनेट सिलेक्ट करनी है ये सोच के सिलेक्ट करनी है कि जो अगला आने वाला साल है वो ऐसा कैंडिडेट होना चाहिए जो पूरे साल आप सब वकला की नुमाइंदगी करे। तो उसको देखते हुए हम अपना वोट कास्ट करेंगे कि जो आने वाला पूरा साल है वो हम जो उसको वोट दे के जो एक कर्ज उन पे जा रहा है वो कर्ज उतारेंगे और फॉर द वेलफेयर बिल्कुल कर्ज उतारा जाएगा। खवातीन भी इसमें सरगर्म है। गुलाम गौस भाई जो खुद कुरैशी साहब आप एक जनरल सेक्रेटरी रह चुके हैं डिस्ट्रिक्ट पार्क के और इस प्रोसेस से गुजर चुके हैं, ये प्रोसेस जमहूरियत के हवाले से कैसे समझते हैं? बड़ा सूदमंद होता है ताकि आने वाली जो कैबिनेट है वो भी अपना किरदार अदा कर सके और जो जाने वाली है उनके लिए बेंच मार्क कायम कर सके। जी बिल्कुल, जैसे असम भी आपने कहा कि ये हमारा जो आप पूरे पाकिस्तान में देख लें इस तरह के इलेक्शन जो है वो किसी भी यूनियन के, किसी भी एसोसिएशन के, इवन के हमारी नेशनल असम्बली के, प्रोविंशियल असम्बली के नहीं होते जिस तरह के हमारे होते हैं। ये थोड़ा सा इख्तलाफ जो होता है, जो ये जमहूरियत का हुस्न होता है, हमारी बाकायदा डिबेट्स होती हैं। ये आज जो है जो भी जीतेगा हमारी वेल विशेज़ अपने ग्रेटर लैंड्स के लिए हैं, लेकिन जो भी जीतेगा वो वकला के लिए, बार और बेंच के लिए जो है ना ये बहुत फ़ायदेमंद होगा। ये नहीं होता कि कोई भी कैबिनेट जीते और वकला के वेलफेयर के लिए काम ना करे, हमेशा ये वकला के वेलफेयर के लिए काम करते हैं। बिल्कुल, ये बड़ी अहम बात। आपका शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। मियां चन्नू बार एसोसिएशन में पोलिंग का अमल जारी है। उम्मीदवार चौधरी मुदस्सिर रजा और मियां सज्जाद हसनैन के दरमियान कांटेदार मुकाबला जारी है। मजीद तफसीलात बता रहे हैं फखरुल जमान। जी फखर, बताइएगा। जी बिल्कुल, मियां चन्नू बार एसोसिएशन की जानिब से जो है वो इलेक्शन का अमल सुबह 9 बजे से जारी है, जिसमें पोलिंग का अमल जो सुबह 9 बजे शुरू हुआ था जो कि बिला ताखीर शाम 5 बजे तक जारी रहेगा। जिसमें अगर बात की जाए सदर की सीट पर जो है वो मियां सज्जाद साहब हैं और इनके मद्दे मुकाबले हैं चौधरी मुदस्सिर साहब, जिनमें कांटेदार मुकाबला जो है वो देखने को मिल रहा है और दोनों उम्मीदवार जो हैं वो बड़े पुरुम्मीद नजर आते हैं कि वो ये कामयाब होंगे। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं सदर के उम्मीदवार मियां सज्जाद साहब। सर बताइएगा कितने वोट जो हैं वो अब तक कास्ट हो चुके हैं और आप कितने पूरी उम्मीद हैं कि आपको ही कामयाबी मिलेगी? औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो इस वक्त कंडीशन है जी, अल्हम्दुलिल्लाह 250 के लगभग वोट कास्ट हो चुके हैं। तो वकला की कसीर तादाद, मेरे प्यारे भाई जो जवान वकला हैं उनकी तादाद काफ़ी कसीर तादाद में वो मेरे साथ हैं जी। बुज़ुर्ग हैं, सीनियर्स जो वकला हैं वो मेरी सपोर्ट में खड़े हैं और इंशाअल्लाह मैं बहुत पुरुम्मीद हूँ कि दोस्त मोहब्बत करेंगे और हम बार की फलाह बहबूद के लिए सारे दोस्त मुझे मुंतखब करेंगे इंशाअल्लाह। सर आपने वोट कास्ट कर बार की फलाह बहबूद के लिए काम करेंगे, आपका शुक्रिया। खुशाब बार एसोसिएशन में इंतखाबात का अमल जारी है। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं जुल्कुनैन हैदर से। जी बताइएगा। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ खुशाब के हेडक्वार्टर जोहराबाद में और ये डिस्ट्रिक्ट बार काउंसिल है जहाँ पर आज इंतखाबात का जो मरहला है वो शुरू हो चुका है। तमाम कैंडिडेट्स भी यहाँ पे मौजूद है, उसके साथ जितने भी 680 की तादाद में यहाँ पे वोटर्स हैं वो भी अपने अपने उम्मीदवार को यहाँ पे वोट कास्ट कर रहे हैं। हमारे साथ आजम जंजुआ साहब यहाँ पे मौजूद है जो कि यहाँ पे सदर के उम्मीदवार हैं। इनसे जानते हैं कि आज किसके इलेक्शन के हवाले से इनके क्या तासुरात हैं। क्या कहेंगे आज का जो इलेक्शन है इसको कैसा देख रहे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह बड़े अच्छे अंदाज में आज का ये इलेक्शन हो रहा है। सारे दोस्त अपना हक रायदगी इस्तेमाल करें और इंशाअल्लाह हमें यकीन है कि हमारा पूरा पैनल कामयाब होगा। तमाम दोस्त इस ठंडे मौसम के बावजूद वोट कास्ट करने के लिए आ रहे हैं, तो इंशाल्लाह रात जब काउंटिंग के बाद इंशाल्लाह हमारी फतह कर। अच्छा जी सर, ये बताइएगा कि ये जो इलेक्शन है ये जस्ट इलेक्शन की हद तक है, ये इसमें कोई मुखालफत भी है? नहीं, जस्ट हमारी ग्रुपिंग होती है बार के अंदर ही, मुखालफत नहीं होती। जस्ट 2 ग्रुप होते हैं,
इलेक्शन कंटेस्ट करते हैं, उसके बाद फिर हम एक जैसे हो जाते हैं, सारा साल एक तरह गुजारते हैं। फिर जब इलेक्शन नज़दीक आता है तो हमारी ग्रुपबंदी होती है, ज़ाहिर हम उसमें अपने अपने जो कैंडिडेट्स होते हैं उनके लिए कैंपेन करते हैं। क्या उम्मीद रखते हैं आज? इंशाल्लाह अल्लाह ताला कामयाबी फरमाएगा। जी बिल्कुल, अल्लाह ताला कामयाबी अता फरमाएगा। जुल्कुनैन हैदर, आपका बहुत शुक्रिया। उधर लिया में भी डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के इंतखाबात वोट कास्ट करने के लिए वोटर्स की आमद का सिलसिला अरूज पर पहुंच गया है। मजीद बात कर लेते हैं जाहिद सरफराज से। जी जाहिद। जी बिल्कुल जी, डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के इलेक्शन के सिलसिले में इस वक्त जो है वोट कास्ट करने का अमल जो है पीक पर पहुंच चुका है। उम्मीदवारों की कसीर तादाद, उम्मीदवार जो है 2 उम्मीदवारों के दरमियान मुकाबला है, तो यहाँ पर वोटर्स की जो कसीर तादाद है वो भी यहाँ पर वोट कास्ट करने पहुंची है और जोश खरोश जो है बढ़ता चला जा रहा है। उम्मीदवार सदर के उम्मीदवार जो गजनफर अब्बास शाह हमारे साथ मौजूद, उनसे बात करते हैं। शाह जी, कैसा देख रहे हैं इलेक्शन आज का? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मैं सबसे पहले शुक्रगुजार हूँ आपके टीवी चैनल का जिन्होंने आज इस इलेक्शन को कवरेज दी। बिलाशुबा डिस्ट्रिक्ट बार लिया एक बहुत खूबसूरत रवायात की मालिक एक बार है। इसकी बहुत खूबसूरत रवैये हैं और तमाम अहबाब हमारी बार में सिर्फ इलेक्शन डे तक एक दूसरे के खिलाफ यहाँ पर जो भी अपने कैंडिडेट की हमायत के लिए मुहिम चलाते हैं और इसके बाद अगले दिन हम तमाम अहबाब बार और बेंच की तरक्की के लिए और इदारों की तरक्की के लिए उनको मजबूत करने के लिए तमाम अहबाब वकला वेलफेयर के लिए अल्हम्दुलिल्लाह हम सब इकट्ठे होते हैं। ये इस लिया बार का हुस्न है और खूबसूरती है। और जहाँ तक बात है इस इलेक्शन की और इस गहमा गहमी के हवाले से, तो आप भी देख रहे होंगे इंशाल्लाह आज जो है आज का दिन ये डिस्ट्रिक्ट बार में एक मरतबा फिर एक तारीखी फतह का दिन होगा जो आप देखेंगे इंशाल्लाह एक नया रिकॉर्ड होगा। तारीखी फतह का दिन होगा। जाहिद सरफराज, आपका शुक्रिया। तहसील बार एसोसिएशन के सालाना इंतखाबात मियां सादिक हुसैन ग्रुप और ग्रैंड अलायंस ग्रुप के माबैन कांटेदार मुकाबला जारी है। इसी पर मजीद तफसीलात जान लेते हैं जावेद इकबाल से। जी जावेद। जी बिल्कुल, बार एसोसिएशन जामपुर में इस वक्त इलेक्शन का अमल जो है वो शुरू हो चुका है और इस वक्त जो है 2 अलायंस जो है मियां सादिक हुसैन ग्रुप और ग्रैंड अलायंस के दरमियान इंतहाई सख्त मुकाबला देखने में आ रहा है। मियां सादिक हुसैन ग्रुप की जानिब से सदारत के लिए आसिम गनी चांडियो उम्मीदवार हैं, जबकि जनरल सेक्रेटरी के लिए सैयद मोहम्मद अफजल शाह जो हैं वो उम्मीदवार हैं, जबकि ग्रैंड अलायंस की जानिब से सदारत के लिए हाफिज मुलाजिम हुसैन उम्मीदवार हैं, जबकि जनरल सेक्रेटरी के लिए मोहम्मद शाहजहां खान अमदानी उम्मीदवार। इस वक्त जो है खवातीन की एक बड़ी तादाद जो है वो भी अपना वोट कास्ट कर रही हैं और वकला जो है अपना वोट कास्ट कर रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर मेंबर जनाब, हम उनसे बात करते हैं। सर अयूब साहब, पूछना ये चाहूँगा कि आज के इलेक्शन जो है जमहूरियत का हुस्न होता है, तो आप इस हुस्न को किस नज़र से देख रहे हैं? अल्लाह पाक का शुक्र है कि इस वक्त तक जो पोलिंग हो रही है बहुत अच्छे अंदाज से हो रही है। दोनों ग्रुप अपनी अपनी कामयाबी का वो कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं। इंशाअल्लाह तकरीबन 4 बजे फिक्स टाइम है, तो रिज़ल्ट जो है निकलेगा। जो भी उम्मीदवार कामयाब होगा वो पूरी बार का उम्मीदवार होगा इंशाअल्लाह। और तमाम काम खुश असलूबी से हो रहा है और अल्लाह पाक से हमारी दुआ है कि ये सारा तमाम प्रोसेस बड़े अच्छे अंदाज में हो जाए और ऑनेस्टी से हो जाए और इंशाअल्लाह ये बहुत ही अच्छे अंदाज में हो रहा है। जी बिल्कुल, सारा तमाम प्रोसेस अच्छे अंदाज में हो जाए। बहुत शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। उधर अलीपुर में भी तहसील बार के इंतखाबात जारी हैं, पोलिंग का अमल जारी है। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं अली हसन से। जी अली, बताइए। हाँ जी बिल्कुल, इस टाइम अलीपुर में जो तहसील बार के पोलिंग का अमल शुरू हो चुका है और जो वोटर साहबान हैं वकला वो अपना वोट कास्ट कर रहे हैं। मेरे साथ ये इस टाइम सदारत के उम्मीदवार हकीम साहब मौजूद हैं। सर बताइएगा कि वोटर कास्ट हो रहे हैं, आप इस इलेक्शन को किस तरह देख रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इलेक्शन को मैं बहुत अच्छा देख रहा हूं और अल्हम्दुलिल्लाह अलीपुर बार एसोसिएशन में मेरा ये 4था मुसलसल कंटेस्ट इलेक्शन है और अल्लाह ताला ने मुझे 2 दफ़ा जनरल सेक्रेटरी और 1 दफ़ा सदारत के लिए मुंतखब किया। अब भी मैं मौजूदा सदर हूँ और इंशाअल्लाह ताला आइंदा भी तवक्को रखता हूँ कि दोस्तों की मोहब्बतें और उनके प्यार से इंशाअल्लाह ताला कामयाबी मेरी होगी और इंशाअल्लाह ताला जो मेरे अधूरे काम रह चुके हैं, जो हमने तकमील किया है, वकला के लिए चैम्बर में लेके आया हूँ और इसके लिए 89 कनाल 18 मरले का मनसूबा मैंने तकमील करवाया है और इंशाअल्लाह ताला वकला कॉलोनी और बाकी जो दीगर हैं वो उनके लिए भी मेरी कोशिश होगी और बाकी जो इलेक्शन है शफाफ हो रहे हैं, सारे वकला मुतमीन हैं। अस्सलाम। सारे वकला पुर उम्मीद हैं। बहुत शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। उधर बहावल नगर में इंतखाबात की क्या सूरत हाल है, जान लेते हैं कासिम अली शेख से। जी कासिम, बताइएगा। डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन बहावल नगर के सालाना इंतखाबात के मौके पर जो खाने के वक्फे के बाद अब दोबारा जो है वो पोलिंग का अमल जो है वो शुरू हो गया है। वकला बड़ी तादाद में जो खाने के बाद अपना वोट कास्ट कर रहे हैं, तो अब तक कितने वोट जो है वो टोटल कास्ट
हो चुके हैं। तो मेरे साथ इस वक्त मौजूद है डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर मोहम्मद अकरम खींचे साहब, उनसे बात करते। सर बताइएगा, जो अब दोबारा पोलिंग का अमल शुरू हो गया, टोटल कितने वोट कास्ट 300 का कास्ट हो चुका है, 300 से ज्यादा कास्ट हो चुका है। अच्छा, तो पोलिंग जो कब तक जारी रहेगी और तकरीबन कितने वोट जो है वो 5 बजे तक जारी रहेगी। टोटल वोट है 650, तो तकरीबन 500-550 वोट कास्ट होगा। तो अब तक जो है वो तकरीबन 300 से ज्यादा हो गए। हाँ जी जी, बिल्कुल। ये थे डिस्ट्रिक्ट सही कासिम अली शेख, आपका शुक्रिया। तहसील बार एसोसिएशन फोर्ट अब्बास में इंतखाबात का दंगल सज गया है। मजीद तफसीलात जान लेते हैं नुमान सईद से। जी नुमान। हाँ जी बिल्कुल, फोर्ट अब्बास में तहसील बार एसोसिएशन का जो इलेक्शन का जो दंगल है वो सच चुका है। पोलिंग का अमल जो है वो जारी है, जो कि शाम 4 बजे तक जो है बगैर किसी वक्फा के जारी रहेगा। इसी हवाले से जो हमारे साथ जो है सीनियर कानूनदान है शाहद बशीर चीमा साहब मौजूद हैं, इनसे जानते हैं। जी सर बताइएगा कि ये बार इलेक्शन जो है ये वकला की फलाह बहबूद के लिए जो है वो ये किस तरह काम करता है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, ये हमारा एक जमहूरी अमल है और हर साल बड़े अच्छे तरीके से जो ऑलरेडी हमारे विनिंग कैंडिडेट्स होते हैं वो इक़्तिदार नए जीतने वालों को मुंतकिल करते हैं। और ऐसी जमहूरियत आपको जैसी बार एसोसिएशंस में नज़र आती है कहीं नज़र नहीं आएगी। साफ ज़ाहिर है, चूँकि ये लॉयर्स की वेलफेयर के लिए एसोसिएशंस बनती हैं, तो फॉर द डिग्निटी ऑफ लॉयर्स जो है ये जीतने वाले जो उम्मीदवार हैं उनका मेन मैनिफेस्टो होता है। और वकला के मामलात में फिर चूँकि हमारा बेंच और बार का आपस में बड़ा गहरा ताल्लुक़ है, इनके दरमियान हम आहंगी पैदा करने के लिए बार एसोसिएशंस के मुंतखब नुमाइंदगान अपना किरदार अदा करते हैं ताकि अवाम-उन-नास को इंसाफ की फराहमी में कोई मुश्किल पेश ना आए। ये जो अवाम-उन-नास को इंसाफ फराहम किया जाए। नुमान, आपका शुक्रिया। तौंसा शरीफ में बार इलेक्शन के लिए वोटिंग का अमल जारी है। मज़ीद तफसीलात बता रहे हैं अजमत बुज़दार। जी बिल्कुल, जनूबी पंजाब के बाकी शहरों की तरह तौसा शरीफ में भी आज बार के इलेक्शन हो रहे हैं। सदारत के लिए 2 उम्मीदवार मलिक मोहम्मद जफर एडवोकेट और सरदार इमरान खान लुधियानी के दरमियान 1-to-1 मुकाबला है, जबकि जनरल सेक्रेटरी के लिए 3 उम्मीदवार जहाँ पे मैदान में हैं। नजमुद्दीन कुरैशी साहब हैं, इसके अलावा आजम खान ईरानी है, जुनैद का गुजार है, उनके दरमियान मुकाबला है। 254 ऐसे मेम्बरान बार हैं जो कि अपना हक दही राय इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे बार इलेक्शन के लिए सिक्योरिटी के भी इंतहाई सख्त इंतजाम किए गए हैं। कुछ यहाँ पे उम्मीदवार भी हमारे साथ मौजूद हैं, वोटर भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। मलिक जफर साहब हमारे साथ मौजूद है। मलिक साहब, क्या उम्मीद है आपको? मैं बिल्कुल पूरी उम्मीद हूँ। मैं साबिक़ सदर तौसा बार रह चुका हूँ। मेरा माजी वकला की डिग्निटी है और वकला और जजेस के दरमियान हमेशा सुलह जोई से काम करवाया है मैंने, और मेरे पिछले दौर में भी किसी किस्म का कोई इंसिडेंट नहीं हुआ। इंशाअल्लाह इस दफ़ा भी मुझे उम्मीद है कि 254 वोटर्स में से तकरीबन 154 मुझे वोट कास्ट करेंगे इंशाअल्लाह, तो मैं भारी अक्सरियत से जीतूंगा। मेरा माटो भी यही है कि वकला जिंदाबाद, और वकील के हर दुख सुख में हर जगह पे मैं 24 घंटे सर्विस देता हूँ, और इंशाअल्लाह मैं जीतकर सरदार उस्मान बुज़दार साहब वज़ीर आला पंजाब साहब से भी मुझे गुजारिश करूँगा कि वो हमारे वकला के लिए वकला कॉलोनी और हमारा जुडिशल कम्प्लेक्स नए असर नौ तामीर करवाएंगे। जी सही अजमत बुज़दार, आपका शुक्रिया। मुल्तान के बेशतर इलाकों में गैस की बदतरीन लोड शेडिंग है। कम प्रेशर और लोड शेडिंग के बाद गैस सिरे से गायब हो गई है। मजीद तफसीलात जान लेते हैं सुहेब गुरमानी से। जी सुहेब। अजी, शहर औलिया में बेशतर इलाकों में गैस बिल्कुल गायब हो चुकी है। इसी तरह पुरानी चांदमारी में भी गैस गायब है। 3 माह हो चुके हैं यहाँ पे गैस की लोड शेडिंग और कम प्रेशर के मसाइल चल रहे थे, लेकिन अब गैस सिरे से ही गायब है, यहाँ के इलाका मकीनों का कहना है। हम इस वक्त फैमिली के साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। लकड़ियाँ जला रहे हैं। आंटी, आप लकड़ियाँ जला रही हैं, गैस नहीं है, क्या मसाइल है यहाँ पे? कब से नहीं है? लकड़ियों के साथ गिल्ला बालन मिल रहा है, बालन भी इतना महंगा ज्यादा हो गया, फिर दूसरा हमारा गैस का बिल इतना ज्यादा, और गैस 2-3 महीने से गैस नहीं आ रहा। कपड़े भी बाल के खत्म कर ले, बालन भी नहीं मिल रहा। बच्चे सुबह नाश्ते तो बगैर स्कूल अज भी नहीं गए है। सजते को स्कूल जाना सीगा बच्चों ने, और बच्चे हले तक लेटे हुए आ। नाश्ता देते तो बच्चे स्कूल जाते ना, क्या हमारे बच्चों च जाने असी नाश्ते तो बगैर बच्चे भेज दिए स्कूल? सारी दिहाड़ी भुखा बैठ के पढ़ होए हुंदा उन्हां कोलों। छोटे छोटे बच्चे हैं, नाश्ते तो बगैर कभी निकल जाते, कभी अभी तक लेटे हुए आ। साडा यह हाल होया होया वा। ये सूरत हाल है, गैस बिल्कुल नहीं है। बच्चे जो हैं नाश्ते के बगैर जाने पर मजबूर हैं। बच्चे लेट हो जाते हैं स्कूल जाने से, और लकड़ियों से जो है आग जलाई जाती है। गीली लकड़ियाँ मिलती हैं, वो भी बड़ी महंगी, 800 रुपये फी मन लकड़ी मिलती है, वो लेकर आते हैं शहरी। क्योंकि सुहेब गुरमानी, आपका शुक्रिया। मुजफ्फरगढ़ शहर के गुंजानाबाद इलाकों में गैस की लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है। इसी पर मजीद तफसीलात जान लेते हैं आमिर डोगर से। जी आमिर, बताइएगा।
जी बिल्कुल, मुजफ्फरगढ़ शहर के मुख्तलिफ इलाकों में गैस प्रेशर की कमी जो है वो देखने में आ रही है, और गैस ना होने की वजह से क्रिश्चियन कॉलोनी, गोस्ट कॉलोनी और दीगर जो इलाके हैं वहाँ पर ख़वातीन जो वो खासी परेशानी का शिकार हैं। ख़वातीन इस वक्त यहाँ पर सिर्फ इसलिए इकट्ठी हुई हैं और एहतजाज कर रही हैं कि महकमा सुई गैस की जानिब से अभी तक किसी भी किस्म का कोई नोटिस नहीं लिया गया। नया साल शुरू होने के बावजूद भी इनकी कोई बात नहीं सुनी जा रही। अच्छा, मुझे बताइएगा कि क्या मसाइल हैं सुई गैस ना होने की वजह से? बहुत ज़्यादा मसाइल है, खाना वगैरह पकाने की तकलीफ होती है और गरीब आदमी है, अफोर्ड नहीं कर सकते। और काफ़ी भैया ना क्रिश्चियन कॉलोनी भी है और कई गोस्ट कॉलोनी भी है, सारे मकाम में बिल्कुल गैस नहीं आता, लकड़ियाँ इस्तेमाल करनी पड़ती हैं और दिहाड़ीदार तबका है। अच्छा, मुझे ये बताइएगा जब गैस नहीं होता तो उसके बाद मुतबादिल क्या चीज़ इस्तेमाल करते हैं आप? लकड़ियाँ इस्तेमाल करते हैं, वो भी हम अफोर्ड भी नहीं कर सकते। इधर उधर से कागज इस्तेमाल करते हैं, लकड़ियाँ भी नहीं अफोर्ड कर सकते। मेरे तो शौहर भी फौत हो गया, यहाँ तो गरीब ये लोग बताइएगा हैं। कि अब क्या मुतालबा है आपको? गैस लाजमी आनी चाहिए। आज मेरा हाथ जल गया, आपको क्या बताएं। जी बिल्कुल, यहाँ पर ख़वातीन जो वो खासी परेशानी का शिकार हैं, यही मुतालबा करती दिखाई देती हैं कि आमिर, आपका शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। हैदराबाद में महकमा रेवेन्यू को डिजिटलाइज की तरफ अहम इक़दाम। असिस्टेंट कमिश्नर नासिर शहजाद डोगर ने पटवारियों में लैपटॉप तकसीम किए हैं। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं मुस्तवर अंसारी से। जी बताइएगा। महकमा रेवेन्यू की जानिब से एक बहुत ज़बरदस्त इनिशिएटिव लिया गया कि देही मरकज़ माल को आगे बढ़ाते हुए पटवारी सर्कल के ऊपर मुंतकिल कर दिया गया, जिसके हवाले से शुजाबाद के अंदर आज पटवारियों के अंदर लैपटॉप तकसीम किया गया, जिसके हवाले से असिस्टेंट कमिश्नर हमारे साथ मौजूद है। हम उनसे जानते हैं, सर ये जो प्रोग्राम चल रहा है, आपने पटवारियों को लैपटॉप दिए हैं, इस हवाले से सर थोड़ा सा बताएं कि ये कैसा प्रोग्राम होगा और इसके अंदर क्या क्या चीज़ होगी? देखिए, ये बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की इनिशिएटिव है। पहले मरहले में हमने हर कानूनी लेवल पर जो है ये जो है हमारे पटवारियों को जो है वो लैपटॉप्स दिए गए, जहां पर बैठ के वो मतलब आप कह सकते हैं कि ये जो हमारा जदीद जो डिजिटाइज सिस्टम है रेवेन्यू का, वो वहाँ पर मुंतकिल किया गया। तो अब ये मज़ीद हमने इनको जो है वो कानूनी इस लेवल से लेकर पटवार सर्कल पर लेके जाना है। तो पहले मरहले में जो है वो 12 हमारे पटवार सर्कल जो हैं उनमें लैपटॉप्स दिए गए हैं पटवारियों को, जहां पर बैठकर वो जदीद जो हमारा कंप्यूटराइज सिस्टम है उसके तहत जो है वो फ़र्द भी जारी करेंगे, इंतकालात भी करेंगे, फ़र्द बदर भी इशू करेंगे, जो बाकी मामलात हैं रेवेन्यू के, जो जिसके लिए सब जो हैं वो राज़ी रिकॉर्ड सेंटर आते थे, अब वो अवाम जो है वो अपने जो उनके पटवार सर्कल हैं वहाँ पर जो है वो रिजॉल्व करा सकेंगे। तो मैं ये समझता हूँ कि ये बहुत बड़ा इनिशिएटिव है, हमने सब ने मिलकर इसको कामयाब करना है इंशाल्लाह। तो ये पब्लिक के लिए मैं कहता हूँ समझता हूँ कि ये सबसे बड़ी फैसिलिटी ये है कि उनको ट्रैवल नहीं करना पड़ेगा, उनका टाइम भी बचेगा, उनको ट्रैवल भी नहीं करना पड़ेगा और वहाँ पर कोई टोकन सिस्टम भी नहीं होगा क्योंकि रश नहीं होगा। जी बिल्कुल, ये हवाले से जो जदीद अस्तवार पे इसको मुंतकिल कर दिया गया और जदीद जो पुराना निज़ाम है उसी के अंदर एक बेहतरी लाते हुए जदीद बहुत शुक्रिया, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। भक्कर में तीसरे रोज भी बारिश, मौसम ठंडा हो गया। शहरी तरह तरह के गर्म पकवान तैयार करने में मसरूफ हैं। भक्कर के इलाके में बलोची सज्जी बनाने का रिवाज काफ़ी आम है। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं असलम बलोच से। जी असलम, बताइए। जी बिल्कुल, अगर मौसम की बात की जाए तो बखर में आज तीसरे रोज से भी बारिश का सिलसिला जारी है। जहां लोग जो है वो गरम गरम पकवान घरों में तैयार करवा रहे हैं, वहां होटलों का भी रुख कर रहे हैं। जहां फिश लोग तैयार कर रहे हैं, वहां बलोची सिजी जो है वो यहाँ पे वो वैसे तो बलोचिस्तान की ये बहुत मशहूर जो है ये सौगात है, लेकिन बखर में भी और पंजाब में इसको जो है वो ज़्यादातर जो है वो डेरों पर जो है वो सिजी तैयार की जाती है। इस वक्त भी हम सजाद असर खान जहानी साहब के डेरे पर मौजूद हैं, जहाँ पर दोस्तों की एक बैठक हुई। यहाँ पे लोगों ने जो है यहाँ पे बहुत इंजॉय किया। सिजी जो है वो पहले ड्राम में जो है वो बकरा तैयार करके उसको जो है वो बनाया जाता है। इसके साथ साथ यहाँ पे लोग जो हैं उनके दोस्त अहबाब यहाँ पे उन्होंने खूब जो है वो जो है इंजॉय किया। मेरे साथ मौजूद हैं यहाँ पे, आपने भी सिजी तैयार करवाई है, खाने में भी आप शरीक थे, कैसा लगा? जी बिल्कुल, ये बारिश का मौसम है और हम सारे दोस्तों को ये एक अच्छा मौका मिला, हम इकट्ठे हुए हैं और हमने खाने का प्रोग्राम बनाया है और हमने बारिश को मौसम को सही तरह से एंजॉय किया है। मौसम ठंडा हो और मिल बैठने का दोस्तों को मौका। आपका शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे और इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिर वक्त इतना ही।